السلام علیکم۔ خبر دوپہر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے پہلے اہم سرخیاں۔ غلام نبی آزاد کی دعوت پر تلنگانہ کے کانگریسی قائدین نئی دہلی روانہ۔ کیشو راؤ کے مکان پر اہم اجلاس، بات چیت کی حکمت عملی کو قطعیت۔ متحدہ آندھرا کے حامی پی کیشو کے بیان کے خلاف ٹی آر ایس کی جانب سے پولیس میں شکایت، اپنے طور پر کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ متحدہ آندھرا پردیش کی تائید میں کڑپا میں مختلف جماعتوں کا بند۔ حصول تلنگانہ کے لیے نوجوان کی پارلیمنٹ کے روبرو خودکشی کے واقعے پر کودنڈارام کا افسوس۔ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کی ہڑتال پر اسما نافذ کرنے حکومت کا فیصلہ۔ وشاکھاپٹنم میں ٹرین پٹریوں پر سے اتر گئی، مسافرین محفوظ۔ ساحلی آندھرا اور تلنگانہ کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش قیاسی۔ اور وسطی اور جنوبی امریکہ میں گرمی کی شدید لہر، 22 افراد ہلاک۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر صحت وہ آندھرا پردیش میں کانگریس امور کے انچارج غلام نبی آزاد کی دعوت پر تلنگانہ کے کانگریسی قائدین دہلی روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ مسئلہ تلنگانہ پر مرکزی قائدین سے بات چیت کریں گے۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے بعض قائدین کل رات نئی دہلی روانہ ہوئے اور بعض قائدین آج صبح دہلی گئے۔ یہ قائدین غلام نبی آزاد، پرنب مکھرجی اور دیگر اہم قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے موقف سے پارٹی قیادت کو واقف کروائیں گے۔ مرکزی قائدین سے بات چیت سے قبل کیشو راؤ کے مکان پر تلنگانہ کے کانگریسی قائدین کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بات چیت کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ متحدہ ریاست کے حامی تلگو دیشم قائدین کا اجلاس گنٹور میں منعقد ہوا، جس میں متحدہ ریاست کے حامی قائدین نے شرکت کرتے ہوئے تشکیل تلنگانہ کے خلاف مرکزی حکومت کو سخت عواقب کا انتباہ دیا۔ تلگو دیشم کے قائد پی کیشو نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر مرکزی حکومت ریاست کی تقسیم کا فیصلہ کرتی ہے تو ایسی صورت میں خودکش حملے کیے جائیں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور صدر کانگریس سونیا گاندھی کو تشکیل تلنگانہ کے خلاف سخت انتباہ دیا۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل میں مرکزی حکومت کی جانب سے تاخیر کے خلاف آدی ریڈی کی پارلیمنٹ کے روبرو خودکشی کے واقعے کے بعد اس نوجوان کے ارکان خاندان سکتے میں ہیں۔ اس کے آبائی مقام پر عوام میں غم کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ آدی ریڈی کے والدین اور دیہی عوام نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ آدی ریڈی کے والدین نے بتایا کہ اس واقعے سے وہ سکتے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آدی ریڈی 17 جولائی کو دوستوں کے ساتھ نئی دہلی روانہ ہوا تھا۔ اس نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کو یقینی بنانے پر ہی حیدرآباد واپسی کی بات کہی تھی۔
मुत्तहदा आंध्रा के हामी पी केशव की जानिब से तेलंगाना की तश्कील पर खुदकश हमले करने की धमकी की शिकायत टीआरएस की जानिब से जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में की गई है। इन कायदीन ने पुलिस ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो पी केशव के इस बयान पर अपने तौर पर कार्रवाई करे, क्योंकि उनका यह बयान गैर कानूनी है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तायद में कड़पा में मुख्तलिफ जमातों की जानिब से बंद मनाया गया। इस बंद की तायद मुत्तहदा आंध्रा की हामी तमाम सियासी जमातों ने की। बंद के मौके पर एक पेट्रोल पंप पर तेलुगु देशम के कारकुनों ने हमला करके पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचाया। कई कारकुनों ने आरटीसी बसों की हवा खारिज कर दी और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। सदर नशीन तेलंगाना सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल प्रोफेसर कोदंडाराम ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए पार्लियामेंट के रूबरू एक नौजवान की खुदकशी के वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा है कि तेलंगाना की तश्कील में ताक़ीर के बायस ही इस नौजवान ने पार्लियामेंट के रूबरू खुदकशी की है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ कौमी शाहराहों पर रास्ता रोको एहतजाज करने की अपील की है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए संजीदा नहीं है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन की जानिब से शुरू की जाने वाली गैर मुइना मुद्दत की हड़ताल से मुताल्लिक़ नोटिस के पेश नज़र हंगामी नौयत की किसी भी खिदमात में रुकावटें पैदा करने की कोशिश पर एस्मा का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। रियासत में एहतजाज और हड़तालों के पेश नज़र सेक्रेटेरिएट में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने इस इजलास में एहतजाज के बायस आम जिंदगी मुतासिर न होने और अवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मौसर इक़दामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि एहतजाज होने वाले इलाकों में दफातर को जाने वाले मुलाजिमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। विशाखापट्टनम में ट्रेन पटरियों पर से उतर गई। सिकंदराबाद से भुवनेश्वर जाने वाली ये ट्रेन पटरियों पर से उतर गई। रेलवे के ओहदेदारों की जानिब से इस वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। रेलवेज के ओहदेदार इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रहे हैं। इन ओहदेदारों ने सबूताज के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया है। इस हादसे में तमाम मुसाफिरीन महफूज हैं। टीआरएस कायद ई राजेंद्र ने आदि रेड्डी की खुदकशी के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए मजीद कितनी कुर्बानियां देखना चाहती है। आरटीसी और जेनको में हड़ताल पर इम्तना आयद करने पर मुलाजिमीन की मुश्तरिका मजलिस अमल ने हुकूमत पर बरहमी जाहिर की है। मजलिस अमल के कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत तेलंगाना की तश्कील को रोकने के लिए हड़तालों पर इम्तना आयद कर रही है और लाजमी खिदमात से मुताल्लिक़ कानून एस्मा नाफिज किया जा रहा है। अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए तेलंगाना के अजला में कांग्रेस की जानिब से सत्याग्रह का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इन अजला के मुख्तलिफ इलाकों में एक रोज़ा भूख हड़ताल भी मुनज़्ज़म की गई। इन कायदीन और कारकुनों ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट में फौरी अलहदा तेलंगाना बिल पेश करते हुए अवाम के जज्बात की कदर की जाए। रियासत की तकसीम पर खुदकश हमले शुरू करने मुत्तहदा रियासत के हामी पी केशव के बयान पर टीआरएस कायद ई राजेंद्र ने शदीद बरहमी जाहिर की है। उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि पी केशव के इस बयान ने सीमा आंध्रा कायदीन की कलई खोल दी है। उन्होंने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को भी तनकीद का निशाना बनाया।
नक्सलाइट्स ने छत्तीसगढ़ के रायपुर के करीब एक पुल को धमाके से उड़ा दिया। इन नक्सलाइट्स ने छत्तीसगढ़ के सदर पीसीसी नंद कुमार पटेल की गाड़ियों के काफिले को भी निशाना बनाया और इन गाड़ियों को धमाके से उड़ाने की कोशिश की। इस वाक़े में नंद कुमार पटेल महफूज रहे, ताहम उनकी दूसरी कार में मौजूद 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। इस धमाके में एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। नक्सलाइट्स ने ये बम पुल पर रखा था। धमाके के बायस पुल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। नंद कुमार पटेल एक जलसे में शिरकत के बाद रायपुर वापस हो रहे थे। वजारत फाइनेंस ने एक नोट में कहा है कि यूरोप और दीगर मगरबी ममालिक की मंडियों में गैर यकीनी इक्तिसादी हालत के बायस आइंदा महीनों में बरामदात में शरह नमू बरकरार नहीं रहेगी। इस नोट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 5 माह में औसतन शरह नमू और शरह बरामदात 40% से ज़्यादा नहीं रहेगी। मोहतमद दाखिला आर.के. सिंह आज भूटान के दारुल हुकूमत थिम्पू रवाना हो गए, जहां वो 22 जुलाई को सार्क ममालिक के दाखिला सेक्रेटरीज के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद में सार्क मोहतमदीन दाखिला के इजलास में किए गए फैसले के निफाज में की गई पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया डेविड कैमरून ने फ़ोन हैकिंग मामले से खुद को दूर रखने की कोशिश की है। उन्होंने इस मामले की संगीनी को देखते हुए अफ्रीका का अपना दौरा मुख्तसर कर दिया और लंदन वापस हो गए। उन्होंने ऐवान नुमाइंदगान में दिए गए अपने बयान में कहा कि ये मामला संगीन है और पूरी ईमानदारी के साथ इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ये बात साबित हो जाएगी कि न्यूज़ ऑफ वर्ल्ड नामी इस अखबार की जानिब से फ़ोन हैकिंग की गई है, तो इसका मतलब यह होगा कि इस अखबार ने वज़ीर-ए-आज़म, पुलिस और दीगर सरकर्दा एजेंसियों से झूठ बोला है। खलाई गाड़ी अटलांटिस ने आज ज़मीन का आखिरी चक्कर लगाया है। नासा इस खलाई गाड़ी की ज़मीन पर वापसी की तैयारियों में मसरूफ़ है। ज़मीन पर वापसी के बाद इस खलाई गाड़ी का 30 बरस का दौर ख़त्म हो जाएगा। आज इस गाड़ी की ज़मीन पर वापसी के बाद खलाई तहक़ीक़ में अमरीका की बरतरी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। सर्बिया में 1990 के दहक की जद्दोजहद के सिलसिले में जंगी जराइम के आखिरी और मुश्तबा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्बिया के सदर ने इसकी गिरफ्तारी पर मसर्रत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से मुल्क के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के इम्कानात को तक़वियत हासिल हुई है। वाज़ेह है कि 1991 से 1995 की क्रोशिया जंग के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस मुलजिम को सर्बिया की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत नहीं की। तमिलनाडु और साहिली आंध्रा में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके ज़ेर असर साहिली आंध्रा और तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि हवा के कम दबाव के ज़ेर असर इन इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है और मतला अबर आलूद रहेगा। वस्ती और जुनूबी अमेरिका में शदीद गर्मी की लहर जारी है, जिसके नतीजे में अब तक 22 अफराद हलाक हो गए हैं। अमेरिका के महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि गर्मी की ये लहर आइंदा भी जारी रहेगी। बताया जाता है कि गर्मी की लहर के बायस कई अफराद अब तक मुतासिर हुए हैं। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। गुलाम नबी आजाद की दावत पर तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन नई दिल्ली रवाना। केशव राव के मकान पर अहम इजलास, बातचीत की हिकमत अमली को कतईयत। मुत्तहदा आंध्रा के हामी पी केशव के बयान के खिलाफ टीआरएस की जानिब से पुलिस में शिकायत, अपने तौर पर कार्रवाई करने का मुतालबा।
متحدہ آندھرا پردیش کی تائید میں کڑپا میں مختلف جماعتوں کا بند۔ حصول تلنگانہ کے لیے نوجوان کی پارلیمنٹ کے روبرو خودکشی کے واقعے پر کودنڈارام کا افسوس۔ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کی ہڑتال پر اسما نافذ کرنے حکومت کا فیصلہ۔ وشاکھاپٹنم میں ٹرین پٹریوں پر سے اتر گئی، مسافرین محفوظ۔ ساحلی آندھرا اور تلنگانہ کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش قیاسی۔ اور وسطی اور جنوبی امریکہ میں گرمی کی شدید لہر، 22 افراد ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبر دوپہر یہیں ختم ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ ڈریم سٹی بالاپور گیٹڈ کمیونٹی، 3 بیڈ روم کا انڈیپینڈنٹ ہاؤس، کار پارکنگ کے ساتھ، صرف 15 لاکھ روپے میں۔ ڈریم سٹی۔